तो जिस चीज़ के लिए हमने एफर्ट्स किए वो चीज़ें आ गई हमारे पास। गाड़ी की थॉट रखी तो गाड़ी आगे बढ़ी, अच्छी कोठी की थॉट रखी तो बढ़िया कोठी बना ली, बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो जाए वो भी अच्छी हो गई। लेकिन सोच कर देखिए, क्या कभी ये थॉट किया कि मैंने शांति से जीवन जीना है? फैमिली को टाइम नहीं देंगे, नाराज़ हो जाएंगे। बेटे के साथ बात अच्छे से नहीं होगी, वो भी नाराज़ हो जाएगा। नेबर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ हम सबके लिए थोड़ा टाइम भी स्पेंड करते हैं और उनकी बात को सुनते भी हैं। लेकिन गलती कहाँ हो रही है, हम सिर्फ अपने मन की बात नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन जो सेल्फ एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, उसके लिए टॉक टू योर सेल्फ। अपने आप से रोज़ बात कीजिएगा। बहुत से लोग यही कहेंगे, थोड़ा थोड़ा टेंशन तो होना चाहिए ना, टेंशन इज़ नेचुरल। टेंशन कब होता है? जब हमारा अपने ऊपर अटेंशन नहीं रहता है। जब स्वयं के ऊपर अटेंशन देंगे तो टेंशन ख़त्म हो जाएगा। अंदर से जब हम बहुत खाली होते हैं तो बहुत छोटी छोटी बातें भी हमें डिस्टर्ब करती हैं, हमें अंदर से हिलाती हैं और हमें अंदर से रुलाती हैं। लेकिन ये एक बहुत हाईएस्ट स्टेज है, तो हाईएस्ट स्टेज है कि टेंशन हो ही ना। नमस्कार दोस्तों, ਮੁਹੱਬਤ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤਮ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ PK ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਸੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਨੂੰ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਉਸਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਇੱਕ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਦਾ ਫਾਜ਼ਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਹਨ ਉਰਦੂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰਫ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆਦਮੀ, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। जे मैं किसी भी दोस्त ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੀ ਆਰਾਮ, ਆਸਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗਜ਼ਲਕਾਰਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਵੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਆ ਇसी को कहते हैं, ਜ਼ਿੰਦਗੀ क्या इसी को कहते हैं कि जिस्म तन्हा है और जान तन्हा। ਤਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ BK ਰਾਜਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚਮਚ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਮਿਆਨ BK ਰਾਜਿੰਦਰ ਜੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ
ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਦੀ। शांति नमस्कार। ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਨੇਚਰ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹੈ, ਆਮ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਆਮ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂति और चैन ਦੇ ਨਾਲ जी रहा है? आपका जो आज का सवाल है ये सभी का है। इस समय हम जो देख रहे हैं, कुछ समय पहले लगभग 25-30 वर्ष पहले से सुनते आ रहे हैं, टेंशन है, दुखी हैं, अशांत हैं। सभी लोगों के कहें कि जो वोकैबुलरी है वो यही हो गया है। भले उसके पास बहुत सुख सुविधाएं हैं, पास ही टेंशन में है, तनाव में है, जीवन की गाड़ी को खींच रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं जो देखने में आ रहा है कि वो लाइफ में कुछ ना कुछ मिसिंग है। जैसे कि हम देखते हैं अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन है तो उसका ध्यान सिर्फ अपने बिजनेस के ऊपर फोकस्ड है। अगर वो कोई और प्रोफेशन में है, मेडिकल प्रोफेशन में है, तो उसका ध्यान सिर्फ उसको फ्लोरिश करना है। लेकिन जीवन के अंदर भी जैसे हम देखो घर के पास दोनों साइड एक गार्डन बना लेते हैं। अब एक गार्डन को आप रोज़ पानी देते हैं, उसको धूप प्रॉपर लग रहा है, सब चीज़ खाद देते हैं, तो वो गार्डन कैसा होगा? फ्लोरिश होगा, उसके अंदर अच्छे फूल आएंगे। और जिस गार्डन में आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं दूसरी साइड, तो वो गार्डन कैसा हो जाएगा? वो सूख जाएगा। इसी तरह से हमारा जीवन है। हम चाहते हैं शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्यार चाहिए, पर हमारे कदम दूसरी ओर है, उस दिशा की ओर है ही नहीं। आज बहुत सारे लोग जब हमें मिलते हैं तो एक बात कहा करते हैं, बहन जी आज से 20-25 साल पहले ना हमारे पास कुछ भी नहीं था, इतनी प्रॉपर्टी नहीं थी, इतनी अच्छी कोठी नहीं थी, इतना अच्छा बिजनेस नहीं था, बच्चों की एजुकेशन अच्छी नहीं थी। ये 20 साल के अंदर, 30 वर्ष के अंदर हमने ये सारा कुछ बहुत मेहनत से अचीव किया। वो कैसे मेहनत? दिन रात एक करके किया। तो जिस चीज़ के लिए हमने एफर्ट्स किए वो चीज़ें आ गई हमारे पास। गाड़ी की थॉट रखी तो गाड़ी आगे बढ़ी, अच्छी कोठी की थॉट रखी तो बढ़िया कोठी बना ली, बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो जाए वो भी अच्छी हो गई। लेकिन सोच कर देखिए, क्या कभी ये थॉट किया कि मैंने शांति से जीवन जीना है? चलो थॉट किया, लेकिन उसके लिए एफर्ट क्या किया? इनके हमारे एफर्ट्स ने हमें सोर्सेज दे दिए। हाँ, सोर्सेज दे दिए, लेकिन हमें शांति नहीं दे पाए, क्योंकि शांति के लिए एफर्ट्स नहीं किए। दिन के अंदर देखिए, दिन रात में 24 आवर्स हैं, 24 आवर्स में हम 28 आवर्स जितनी दौड़ कर रहे हैं। लेकिन दीदी एक चीज़ ऐसी भी है कि मैं अपनी ज़िंदगी को जो चाहता हूँ मुझे लगता है कि सिर्फ आधा हिस्सा मेरे बस में है कि मैं उसको कर सकता हूँ। आधा हिस्सा मेरे बच्चे मुझसे क्या चाहते हैं, मेरे पेरेंट्स मुझसे क्या चाहते हैं, ये मुआशरा, ये समाज मुझसे क्या चाहता है, वो बात फिर वहीं पे आ जाती है दीदी। तो मुझे उनकी उम्मीदों पे भी पूरा उतरना है, लेकिन उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरते उतरते ही ये ज़िंदगी गुजरती है और मैं इस तरफ सोच भी नहीं पाता। तो उससे निकलने का क्या ढंग है दीदी कि मैं उनकी उम्मीदों पे भी पूरा उतरूँ, उसको भी करूँ, लेकिन उसके बाद अपने लिए वक्त निकलता नहीं, या सोचने का ये वक्त ही नहीं होता कि खुद के लिए सोच पाएँ। लेकिन इसके लिए ऐसा है कि वक्त नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। जैसे हमने बाकी सब चीज़ों के लिए समय देना या उनके लिए कुछ करना ज़रूरी समझा है, फैमिली को टाइम नहीं देंगे नाराज़ हो जाएंगे, बेटे के साथ बात अच्छे से नहीं होगी वो भी नाराज़ हो जाएगा, नेबर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ हम सबके लिए थोड़ा टाइम भी स्पेंड करते हैं और उनकी बात को सुनते भी हैं। लेकिन गलती कहाँ हो रही है, हम सिर्फ अपने मन की बात नहीं सुन पा रहे हैं, अपने आप से नहीं करते हैं। लेकिन जो एक आध्यात्मिकता का मार्ग है
उसमें अगर हम इन सब चीज़ों से थोड़ा अपने आप को ऊपर ले जाना चाहते हैं, एक शब्द आया कहता साक्षी भाव, साक्षी होकर देखो। पर ये स्टेज इतनी इजी नहीं है। दूसरों के लिए साक्षी हो सकते हैं, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, क्या बोल रहा है, लेकिन जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस होती है उसके लिए हमें मेंटली स्ट्रांग होने की आवश्यकता है, सेल्फ एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। लेकिन जो सेल्फ एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं उसके लिए टॉक टू योरसेल्फ, अपने आप से रोज़ बात कीजिएगा। यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि सेल्फ एनालिसिस, कि अकेले बैठ के हम खुद को एनालिसिस करें, अपने आप को अलग मान के, अपने जो देहिक रूप है इसको अलग के रख के, जैसे मैं पी के अरोरा हूँ तो पी के अरोरा को मैं अलग होकर पी के अरोरा को एनालाइज करूँ कि उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। एनालिसिस क्या है कि मन का नेचर है, वो हमें करना नहीं पड़ता, वो भी हमारी नेचर में है। जी दीदी, हम भले लगता है हम व्यस्त हैं, फिर भी हमारा मन हमारे को देख रहा है। सपोज मैंने आज गुस्सा किया, लेकिन फिर भी मैंने देखा ना कि मैंने किया है। जी दीदी, अगर मेरा मन बहुत शांत है तभी तो मैं अपने को देख रही हूँ ना कि मैं शांत हूँ। अगर मेरा मन शक्तिशाली अवस्था का अनुभव कर रहा है, वो भी अभ्यास, वो अनुभूति भी मेरे पास है ना। लेकिन दीदी फिर भी अगर चलिए इस बात को हम मानते हैं कि हम एनालिसिस करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये होता है कि हम मोस्टली टेंशन में रहते हैं, फिर भी टेंशन्स हैं, ये क्यों है? हाउ वी कैन मैनेज, कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं कि मैं टेंशन में ना रहूं, एकदम से पीसफुल और शांत ज़िंदगी भी जीऊँ, और एज वेल एज जो दुनिया, मेरे बच्चे, मेरा परिवार मुझसे चाहता है उसको भी मैं उनके मुताबिक उन पे पूरा उतर पाऊँ। जो टेंशन की बात कर रहे हैं, ये कुछ तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। बहुत से लोग यही कहेंगे थोड़ा थोड़ा टेंशन तो होना चाहिए ना, टेंशन इज़ नेचुरल। उनका जो थॉट सिस्टम है उसमें ये बात फिट हो गई है कि होना ही चाहिए। उनका कहने का भाव है अगर आप टेंशन नहीं लेते तो आप कोई भी परफॉर्मेंस अच्छी तरह नहीं दे पाएंगे, तो थोड़ा टेंशन तो ज़रूरी है। ये आज के इंसान ये टेंशन पॉजिटिव एस्पेक्ट होना चाहिए, ले लिया नेगेटिव में नहीं है। वो टेंशन जो है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम कह सकते हैं, तो जिम्मेवारी का भाव होना चाहिए, चिंता का नहीं। तो उसको पॉजिटिव में लेके जाएंगे तो वो में लेके जाएंगे। जी दीदी। लेकिन परमात्मा इसके लिए एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। टेंशन कब होता है? जब हमारा अपने ऊपर अटेंशन नहीं रहता है। जब स्वयं के ऊपर अटेंशन देंगे तो टेंशन ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात, टेंशन इस बात का है अंदर से एम्प्टीनेस है, होलोनेस है। अंदर से जब हम बहुत खाली होते हैं तो बहुत छोटी छोटी बातें भी हमें डिस्टर्ब करती हैं, हमें अंदर से हिलाती हैं और हमें अंदर से रुलाती हैं। लेकिन जब अंदर से अपने को महसूस करते हैं, कंटेंटमेंट आ गई, एक ऐसी पावर हमारे पास आ गई, तो फिर भले वो सिचुएशन टेंशन वाली हो, दुखदाई हो, चिंता देने वाली हो, लेकिन फिर हम जल्दी से बाहर आ जाते हैं। लेकिन ये एक बहुत हाईएस्ट स्टेज है, तो हाईएस्ट स्टेज है कि टेंशन हो ही ना। लेकिन इतनी स्टेज को अचीव करना तो शुरुआत तो उसमें मुश्किल है, लेकिन फिर भी जब हम एक आध्यात्मिकता को जीवन के अंदर लेके आते हैं तो हम जल्दी से बाहर आ जाएं उस टेंशन वाली सिचुएशन से, उस बात से, जो भी है उसे जल्दी बाहर आ जाए। आया, फिर हम बाहर कूद गए, तो वो एक मन की स्थिति हो जाती है, हमारा स्टेट ऑफ माइंड हो जाता कि बस। तो मेनली दीदी आप क्या कहेंगे कि एक जो आम आदमी है उसके लिए टेंशन की वजह क्या बनता है? क्यों टेंस होता क्यों है? वो क्या रीज़न है उसके? उसके लिए सबके अलग अलग कारण हैं। एक छोटा बच्चा है, उसको पढ़ाई के कारण है, और हो सकता है उसके घर में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हों, ये बच्चे की प्रॉब्लम आ गई। थोड़ा बड़ी क्लासेस में जाएगा तो फिर उसको एजुकेशन, करियर से रिलेटेड टेंशन हो जाएगा। बिजनेस वाले को अपना उस तरह का, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको अपना टेंशन होगा, और नहीं तो फैमिलीज़ में टेंशन है, रिलेशनशिप में है। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद भी टेंशन है। जी। टेंशन तो चलता ही आ रहा है क्योंकि कभी भी मन को दिशा नहीं दी है, नहीं किया। मन मोस्टली नेगेटिव थॉट्स को लेता है, मन को कुछ खोने का डर, कुछ ये कि मैं इस बात को, ये मेरे पास से चला ना जाए,
वो धन है होल्डिंग या नेचर। वो होल्डिंग का जो एक भाव है, जो मेरे हाथ में आ गया बस वो नहीं जाना चाहिए, नहीं और जो आए वो भी आता जाए, जो है वो बस रहना चाहिए। और जो उसको खोने का डर है Human वो ten- आपके लिए टेंशन क्रिएट कर ह्यूमन देता है। टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है होल्डिंग नेचर। तो इसके बात के लिए आपको या तो जो आपके पास है उसकी असलियत समझनी चाहिए कि आप लेके नहीं आए थे, Acceptance. लेके नहीं जाएंगे, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस चाहिए उसमें, या फिर ये है कि जो आपके पास है आप उसको खोने के लिए तैयार रहें, तैयार है, मेंटली प्रिपेयर। मेंटली प्रिपेयर्ड हों कि अगर जाता है तो जाता है, आता है तो आता है, आप साक्षी भाव में चले जाएं तो मैं उससे आप निकल सकते हैं इससे। उसके और लिए- इसका क्या ढंग हो सकता है दीदी इस टेंशन उसके से लिए निकलने बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, लेकिन जनरली होता क्या है, हम ये प्रैक्टिस पूरा लाइफ नहीं करते हैं। का? जब छोटी अवस्था में हैं तो ये सोचते हैं अभी तो बच्चे हैं, फिर बड़े हुए अभी क्या सोचना है, और युवा अवस्था में आए अभी तो हम बहुत बिजी हो गए हैं, अब तो बिल्कुल नहीं सोच सकते इस विषय में। और आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर 60 क्या हो जाता है, हमारा जो माइंड की सेटिंग है वो बहुत फिक्स हो जाती है। अब पूरा लाइफ हमने जो जो सोचा था ना, अब हम उसी के आसपास घूमेंगे। अगर छोटेपन में, बाल्यकाल में ही हम थोड़ा इस चीज़ को लेकर के आते लाइफ में साथ साथ, तो फिर ये स्टेज आती नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, करीब से जाना है, जो अपने युवा काल से मेडिटेशन या कुछ आध्यात्मिकता को स्टडी किया, फिर लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, और फिर उनका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो डिफरेंट है। जी ऐसे लोग देखे हैं बहुत नज़दीक से, बहुत कारोबार करते हैं, व्यस्त है बिजनेस में, पर उनका स्टेट ऑफ माइंड जो है बिल्कुल कूल, काम, एकदम पेशेंस के साथ वो डील कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है दीदी कि जो उम्र हमारी सीखने की होती है, दो टर्म्स आ जाती हैं, एक है क्वालिफिकेशन और दूसरी है एजुकेशन। मुझे ये लगता है दीदी कि हमारे समाज में जो है एजुकेशन पे जोर कम दिया जाता है, क्वालिफिकेशन पे ज़्यादा दिया जाता है। ये हम अब मैं मैट्रिक कर गया, अब मैं +2 कर गया, अब मैं ग्रेजुएशन कर गया, अब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर गया, और उसका एम क्या रहता है कि मैंने एक नौकरी करनी है या मैंने काम करना है, फिर कमाई करनी है, परिवार को चलाना है, वहीं तक रह जाता है। लेकिन एजुकेशन इज़ एन डिफरेंट थिंग। एजुकेशन इंक्लूड कर लेता है कि मैंने कैसे जीना है, जीने का क्या ढंग होना चाहिए, मेरा दूसरों के लिए क्या रवैया होना चाहिए, रिलेशनशिप को मैंने कैसे मैनेज करना है, उन चीज़ों को हम नहीं सीख पाते। और ये जो एजुकेशन लेने की है वो शुरू से ही इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि सारी ज़िंदगी को हमने निकालना होता है। लेकिन अपने साथ दोस्तों ट्रेजेडी क्या रहती है कि जब तक हम इन चीज़ों को सीखते हैं तब तक हमारी उम्र के हम आखिरी पड़ाव में पहुंच जाते हैं, जब उसका कोई फ़ायदा भी नहीं ले पाते। लेकिन दीदी अब सवाल ये है कि चलिए अब पहुंच तो गए, जो गलती हुई वो तो हो गई, मैंने शुरू से नहीं सीखा, आज मैं इस एज पे पहुंच गया, तो अब मेरे पास क्या ढंग है कि मैं अपनी जो बाकी ज़िंदगी है उसको मैं सही ढंग से गुजार पाऊँ। पहले तो हमारी एक थॉट होनी चाहिए, वो भी डिटर्मिनेशन के साथ। और मैं सिर्फ कहूँगी डिटर्मिनेशन भी तब आती है जब पहले एक रियलाइजेशन होगी कि मेरा लाइफ का इतना जो पीरियड था, इतने जो साल थे वो वेस्ट चले गए, लेकिन अब जो मेरे हाथ में है वो तो मुझे पता नहीं कितना है, जो चला गया वो मुझे मालूम है कितना चला गया, लेकिन उससे मुझे अब बिताना नहीं है, उससे मुझे सफल करना है। आज जब कई बार बहुत से लोग जब आप सबसे भी मिलते होंगे, पूछते हैं कैसे हो जी, क्या हाल है, तो क्या जवाब होता है, उनका रिस्पॉन्स क्या होता है, बस जी टाइम पास कर रहे हैं, बहुत सी लाइफ निकल गई, बाकी थोड़ा समय ये भी ऐसे ही निकल जाएगा। तो मैं ऐसे बहुत रहम आता है कि वास्तव में एक चीज़ सभी लोग कहा करते हैं, ये जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, बहुत कीमती है। इतना कीमती होने के बाद भी फिर हम कहते बस जी टाइम पास कर रहे हैं। तो हमें ये होना चाहिए कि हमें अपने जीवन को, टाइम को सफल करना है, ये मर्जी मेरी है, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट मुझे करना होगा। इनके सबसे पहले तो मुझे अपने मन में ये धारणा बनानी होगी कि मैंने अपने आने वाली ज़िंदगी को सही ढंग से संवार के चलना है। बिल्कुल। मुझ में क्या कमियां हैं उनको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे मैं सफ़र कर रहा हूँ और कैसे मैंने आगे की ज़िंदगी में मैंने इनको दूर करना है। पहली बात ये। तो दीदी इसमें कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? पहली बात तो चलिए मैंने इस बात को डिटर्मिन कर लिया कि ठीक है, मैंने आने वाली ज़िंदगी को उस ढंग से नहीं जीना जिस ढंग से मैंने जिया है। जैसे मैं हमेशा टेंशन में रहा, चिंता में रहा, नेगेटिव थॉट्स रही जो मुझे डराती रही। और ये भी कहते हैं कि मोस्टली जो हम सोचते हैं नेगेटिव सोच के, जिसको
हम चिंता करते रहते हैं, टेंशन फेस करते रहते हैं। ज़िंदगी में मोस्टली 90% वो चीज़ें होती नहीं लाइफ में। हम सिर्फ सोचते हैं और मान लेते हैं कि ये होगा और उसी को लेकर हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो होती नहीं है। तो लेकिन दूसरी बात, फिर उससे मानसिक तौर पे हम कैसे निकलें कि वो नेगेटिव थॉट्स हमारे पास आए ही नहीं, उनको हम सोचे ही नहीं और पॉजिटिव सोच के हम अपने आप को शांत रख पाएँ। उसके लिए हमें दोनों तरह की सिचुएशन के लिए मेंटली प्रिपेयर होने की आवश्यकता है। अगर मेरा रिज़ल्ट ऐसे आया अच्छे वाला तो भी मैं ठीक हुआ, आई एम हैप्पी। अगर मेरा रिज़ल्ट 1%, 2%, 5%, हमें ये मार्जिन रखना चाहिए। यदि नेगेटिव में भी आ गया, ऐसे भी आ गया तो ओके, तो उसमें भी मुझे स्वीकार है। उस स्वीकार भाव को हमें अंदर में जागृत करना पड़ेगा। वो सो रहा है ना अभी अंदर। जी जी। देखो, सिचुएशन के बाद भी, वो परिस्थिति के बाद भी एक्सेप्ट तो करना ही पड़ता है जी, है ना। लेकिन वो एक्सेप्टेंस कैसी होती है, उससे मैं एग्री नहीं होते, हम एग्री नहीं होते हैं, बट एक्सेप्ट करते हैं, बट एग्री नहीं है। लेकिन उसके लिए मुझे, जैसे थॉट क्या है, एक सीड है। कोई भी सीड को एक बार धरती में डाल दिया, लेकिन आफ्टर दैट उसको क्या करना पड़ेगा, कभी पानी, कभी खाद, कभी कुछ बार बार उसकी सस्टेनेंस। इसी तरह से जो एक अच्छी वाली थॉट हम लेते हैं कि मुझे इस सिचुएशन से ऐसे रहना है, ऊपर रहना है, खुश रहना है, लेकिन एक बार सीड हमने ग्रो किया लेकिन सस्टेन नहीं करते हैं। सस्टेन करने का अर्थ है उस सीड को बार बार फिर से रिमाइंड कराना अपने आप को, और उसके विजुलाइजेशन अच्छी चीज़ है, पावर ऑफ विजुलाइजेशन। कभी अपना शांति वाला चेहरा शीशे के आगे देखिएगा, वो चेहरा कैसा होता है। हाँ, बड़ा अपने आप को तसल्ली होती है, खुशी होती है। कभी स्माइल करते मुस्कुरा के देखिएगा, शीशे के आगे जाके, दर्पण के आगे गए तो उस मिरर में वो खुशी वाला चेहरा कैसा है। तो यहाँ से हट जाने के बाद भी मुझे वैसे ही होना है। तो इसका ये हुआ दीदी के दो चीज़ें मैं यहाँ तक समझ पा रहा हूँ। एक तो साक्षी भाव हम लेके चले कि ये एक शरीर है जो इस संसार के कामों को कर रहा है। ये एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है जिसको हम उसके नाम से बुलाते हैं। पैदा हुए, माँ बाप ने एक नाम दे दिया, पविंदर नाम दे दिया, दोस्तों ने पविंदर कह के बुलाया, समाज में पविंदर के नाम से आइडेंटिफिकेशन हुई, तो मैं पविंदर हो गया। लेकिन क्वेश्चन इज दिस दैट आई एम नॉट पविंदर, आई एम एन डिफरेंट पर्सन। मैं आत्मिक रूप मेरा अलग है, शरीर का रूप अलग है। एक दिन आएगा ये शरीर के जो 5 तत्व हैं 5 तत्वों में चले जाएंगे, लेकिन जो मैं हूँ मैं फिर भी रहूँगा, शाश्वत हूँ। अगर इस बात को हम समझना चाहिए हमें, और उसको सोच के हमें साक्षी भाव ले जाना चाहिए। हमें इस शरीर का साक्षी हो जाना चाहिए, तब हम शांत रह सकते हैं। और दूसरा, हमें स्वीकार भाव रखना चाहिए कि जो हो रहा है, जो होगा वो निश्चित है, तो उसको हमें स्वीकार करना है। जब हम उसको स्वीकार नहीं करते या उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते तो वो हमारे लिए टेंशन क्रिएट करता है। तो दीदी, इसमें मेडिटेशन का कोई क्या रोल है, या मेडिटेशन को आप क्या डिफ़ाइन करेंगे? क्योंकि मेडिटेशन आज का सब्जेक्ट ऐसा है जिसको बहुत ही उलझा हुआ सब्जेक्ट है। डिफरेंट इसकी डेफिनेशंस हैं, डिफरेंट ढंग से इसको मोड्स इसके देते हैं, लेकिन मैं तो कम से कम क्लियर नहीं हो पाता इसमें। आप मुझे इसमें डिटेल में बताइए कि मेडिटेशन है क्या और कैसे इसको किया जा सकता है। मेडिटेशन जो वर्ड है ये मैड्री से आया, लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ है मेडिटेटिव टू हील। टू हील, हाँ। तो मेडिटेशन जब हम करते हैं, और अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो अंदर से जो हमारी पावर्स हैं और क्वालिटीज़ हैं उनको बाहर ले आना, सही समय पर सही तरीके से यूज़ करना। क्योंकि हमारे भीतर बहुत कुछ डोरमेंट पड़ा है, और मेडिटेशन इज सेल्फ डिसिप्लिन, मेंटल डिसिप्लिन। आज हमारा जो माइंड है, बच्चे का मन भी भटक रहा है, वो कहता है मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा। जो मेडिटेशन कर रहा है मेडिटेशन में नहीं लग रहा, जो बिज़नेस कर रहा है बिज़नेस में नहीं लग रहा। हर एक की प्रॉब्लम है ये। लेकिन उसका अर्थ क्या है कि हमारे अंदर जो शक्तियाँ हैं, जो डोरमेंट पड़ी हैं, उसको बाहर ले जाना एक भीतर की यात्रा है। प्राचीन काल से ही मेडिटेशन लोग करते आ रहे हैं, लेकिन अलग अलग
धर्मों के अंदर मेडिटेशन टेक्निक्स जो हैं वो अलग अलग बताई जाती हैं। कहीं पर बताते हैं ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। एक श्वास के ऊपर अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिए। जी दीदी। और अन्य कोई बताएंगे कोई पर्टिकुलर एक स्थान पर अपने माइंड को कंसंट्रेट करना, दैट मीन्स मेडिटेशन। और कोई है कहते हैं मेडिटेशन मीन्स थॉटलेस हो जाना, कोई भी थॉट ही नहीं चले। लेकिन हमें ये समझ होनी चाहिए कि माइंड का जो स्वभाव है हमारे मन का थॉट्स जनरेट करना। आप सो गए, शरीर रेस्ट में चला गया, ये मन तो फिर भी भागता रहता है। हाँ, बायोलॉजिकली देखें तो ब्रेन Subconscious का mind काम है काम थॉट्स कर- को क्रिएट करना। हाँ। ब्रेन तो अपना काम करता रहेगा जब करता से पैदा रहेगा, हुए हाँ। जब तक हमारे श्वास हैं। ब्रेन ने अपना काम करना है, थॉट्स क्रिएट करते रहना है। बिल्कुल, तो लेकिन अगर मैं कहूँ कि थॉटलेसनेस की पोजीशन कोई है तो हो सकता है बहुत जीरो दूर की। थॉट होता ही नहीं है। जीरो थॉट नहीं होता। फ्यू सेकंड्स अगर हो सकता है, फ्यू सेकंड्स के जी। लिए हो सकता है, क्योंकि अगर थॉट जीरो तक चला जाए तो आपको अनुभव क्या होगा, फीलिंग क्या होगी। अगर कोई दुख की फीलिंग आती या सुख की फीलिंग आती, थॉट से ही तो आती है ना। मेडिटेशन का अर्थ है हाँ, प्योर सुख भी आप महसूस करेंगे तो थॉट्स चाहिए उसके जीरो लिए। में तो कोई अनुभव ही नहीं है उसमें भी आपके थॉट्स पास। चाहिए, सही है दीदी। उसमें भी वो चाहिए, इसलिए थॉटलेस तो हो ही नहीं सकते कभी भी। जी। एक डेड बॉडी ही थॉटलेस होती है जी, है ना। जी। तो इसलिए मेडिटेशन के अंदर जो विशेष चीज़ है यहाँ सिखाई जाती है राजयोगा मेडिटेशन। यहाँ की जो टेक्निक है उससे हम कहते हैं इजी राज योगा, जिससे हर आयु, हर वर्ग, हर धर्म वाला उसे अपने जीवन में अपना सकता है। जी दीदी। इसलिए उसके अंदर सबसे पहली जो स्टेप आती है वो सेल्फ रियलाइजेशन, हु एम आई। लेकिन मेडिटेशन करने वाला दीदी फिर से बताइए, सेल्फ रियलाइजेशन, व्हाट रियलाइजेशन किस ढंग से हो सकती है? अपने स्वरूप पर कंसंट्रेट करना। क्योंकि जो मेडिटेशन कर रहा है वो मेडिटेटर है कौन, साधना करने वाला साधक कौन है वही पता नहीं है। अगर वही मुझे पता नहीं तो मेडिटेशन कौन कर रहा है और वो किस लिए कर रहा है उसको यही पता नहीं है ना। तो उससे पहले ये पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर होती है स्वयं के बारे में, जिसे हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। जी दीदी। हु एम आई, व्हाट एम आई, वेयर एम आई। तो वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद फिर हम इस विषय को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। एक अलग विषय है जी। जिसको हम लेकर के फिर इसे क्लियर कर सकते तो हैं। उसमें यानी कि ये हो जाता है कि मेडिटेशन एज आई थिंक के दो चीज़ें ज़रूरी हैं इसके लिए, डिफ्यूज़न एंड फ्यूज़न। कि पहले हम इसको बाहर के आउटर से इसको डिफ्यूज़ करें, इसको तोड़ें और फिर इनर के साथ इसको फ्यूज़ करें, इनर के साथ जोड़ें, सेल्फ के साथ इसको जोड़ें, तो उसके बाद ही मेडिटेशन पॉसिबल हो सकती है। नहीं, जब इनर पावर जागृत हो जाती है ना जी दीदी। तो जो आपके पास वेस्ट था, जो अनवांटेड था, वो तो अपने आप हटता जाएगा। एक बल्ब यहाँ पे ऑन कर दिया तो यहाँ डार्कनेस जो है वो अपने आप हटती जाएगी। सिमिलरली हमारे पास जो प्योर पॉजिटिव थॉट अंदर आ गई है तो उससे क्या होगा, आपका कनेक्शन तो जुट ही जाएगा, आपकी चार्जिंग तो शुरू हो गई, जी। चार्जिंग तो होने लगी है ना। लेकिन दीदी मैंने कई बार कोशिश की कि मोस्टली मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी शेयर किया हमने कि जब भी हम मेडिटेशन में जाने की कोशिश करते हैं, आंखें बंद हुई और तो थॉट्स जो है कहीं के कहीं चली जाती हैं। बैठे यहाँ पे हुए हैं, सोच कहीं और रहे हैं। गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी चल रही है, हाथ स्टीयरिंग पे है, पाँव क्लच पे, एक्सीलेटर पे काम कर रहा है, लेकिन माइंड उससे पहले ही कहीं और पहुँच जाता है। तो उससे अवॉइड करने के लिए सेम इज़ विद मेडिटेशन। जब मेडिटेशन पे बैठता भी हूँ, शुरू करने की कोशिश करता हूँ, तो लेकिन थॉट्स तो कहीं के कहीं ले जाती हैं दीदी, वो शांत ये नहीं प्रॉब्लम सबकी है। जी। इसके लिए क्या है, इस चीज़ को हमें समझना होगा कि अपने मन को भटकाने का काम कितना किया। इसी जन्म में देख लीजिए, बचपन से लेके क्या कभी किसी ने कंसंट्रेट करना सिखाया, अपने आप से बात करनी सिखाई, किसी ने भी नहीं सिखाया। हमें इस विषय पे कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता कि हाउ टू कंसंट्रेट योर माइंड। लेकिन हम इस बात पे बहुत देर हो चुकी होती है जब सोचना शुरू करते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगी। पोस्टपोनेंस, जब भी मेडिटेशन में आप बैठे हैं, आप उस एनवायरनमेंट बना कर के बैठे हैं,
जिस भी पोस्चर में बैठे हैं, उस समय ड्यूरिंग मेडिटेशन आपको एक थॉट आती है, मुझे फलां व्यक्ति को फ़ोन करना था, बहुत इम्पोर्टेंट है। फ़ोन कितने बजे करना? रात को 8 बजे करना। मेडिटेशन में आप बैठे हैं 6 बजे, पर थॉट कब आएगी? 8 बजे नहीं, 6 बजे आएगी ना। 6 बजे थॉट आई ड्यूरिंग मेडिटेशन, आपको फिर याद आया मैं कहाँ बैठे हैं, हम तो मेडिटेशन के लिए बैठे थे, ये क्या हो रहा है, मुझे उस फलाने की याद आ गई। ऐसा होता है ना। लेकिन उसको पोस्टपोन कीजिए। किस थॉट से? उसको बोलिए प्लीज़ थोड़ा ठहरिए, रुकिए, अभी मेरी भगवान से मुलाकात हो रही है। पहला थॉट बहुत फोर्स के साथ आएगा, मुझे फ़ोन करना है। आप बैठे, फिर से कंसंट्रेट किया, सेकंड टाइम फिर से वही थॉट आएगी, बट कम फोर्स के साथ आएगी, मुझे उनको फ़ोन करना है। कम फोर्स के साथ है, डिस्टर्ब करने वाला थॉट नहीं आया। फिर से कहिए, अभी मैं बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग मेरी चल रही है, अभी मैं 5 मिनट के बाद फ़ोन के लिए आपसे मिलता हूँ। थर्ड टाइम फिर से वही थॉट आएगी, मुझे फलां व्यक्ति को फ़ोन करना, रात को 8 बजे भूल तो नहीं जाऊँगा। तो फिर से पोस्टपोन करना, 3 बार पोस्टपोन करेंगे। चौथी बार उस थॉट का जो बार बार डिस्टर्ब कर रही थी उसका प्रेशर कम हो जाएगा और माइंड चौथी बार में कम्प्लीटली कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। ट्राई टू से। तो दीदी आप ये कुछ है कि जैसे कहते हैं कि श्वास का भी इसमें कोई इम्पोर्टेंस है कि ये अगर हम लंबा सांस लेते हैं या छोटा सांस लेना है या गहरा सांस लेना है, उसका मेडिटेशन में कोई रोल है दीदी? उसका मेडिटेशन में जो रोल है सिर्फ इतना ही है कि आपका जो ब्रेन है वो फ्रेश हो जाता है, ब्रेन सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ब्रेन सेल्स एक्टिवेट हो गए तो आप इजीली कंसंट्रेट कर पाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है और वो ब्रेन को आपके। यदि आप फिजिकली बहुत अपने आप को फील कर रहे हैं हैवी है और माइंड कंसंट्रेट नहीं होगा, तो मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से ही हमें हल्का होना बहुत आवश्यक है। दीदी आप हमारे दर्शकों को कोई छोटा सा वो दिखा पाएंगे, करवा पाएंगे कि मेडिटेशन का आज दोस्तों समय ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਕਤ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ। मैं दीदी ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਬੜਾ ਬਰਨਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੋ ਐਂਗਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਦੀ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਬਾਰੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਣਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਦੀਦੀ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਜੋ ਨੀਚੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ। Mohabbat Radio.